നമസ്കാരം. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി തിഹാർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട JNUവിൻ്റെ നേതാവ് कन्हैया कुमार ആണ് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത്. कन्हैया, आपने जेल से बाहर आया है. उमर और some of your colleagues are still in the jail. As per this verdict, do you think they can come out of the jail? I want to say that I have full faith in my judicial system. I have full faith in my constitution, and this entire matter is sub judice. So I will not comment on the case, and whatever in the bail order, I endorse it. They will get bail or they will not. Then this whole things upon the judicial system, and this matter is sub judice, and then the court will decide. I am a political activist, so my prime concern to start a political campaign against the misuse of sedition law. We are not talking about Umar and Anirvan. We are talking about sedition as a law, how it is dangerous to curtail the voice of dissent in our country, to curtail the democratic ethos of this country. This is colonial law, and the Britishers were using this law to silence the freedom fighters, and now the old followers of Britishers, they are in the power, and they are using this law to keep silent the students. And which students? Those who are fighting for the justice of Rohit Vemula, those who are fighting against the privatization of education, those who are fighting for the cause of tolerance in this country, those who are fighting in solidarity with the students of FTII, those who are fighting against the suicide of farmers in this country, those who are fighting for the cause of Dalit atrocities. So I am thinking that this entire conspiracy by the government to suppress the movement which is taking place from the FTII through Rohit Vemula till JNU, and it is not possible in this juncture, because people like you and many are speaking against the malpractice of tools of the government. So this law will not help them very long. So this law will be scrapped, and our all students and activists, those who are behind the bar, they will come out. You know about the Kobam. He is a singer. He is from Tamil Nadu. He is also booked under the sedition law. So when we talk about the law, a regressive law, we have to talk about all the prisoners who are behind the bar through that particular law. आपने कैसे बढ़ाना चाहता है ये मूवमेंट को? FTI का बात करा दिया है, अब JNU का है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर में होते रहते हैं, तो कैसे बढ़ाना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता है ये. यूनिवर्सिटी का सवाल जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर भी पहुंच जाता है, क्योंकि जब आप किसान की आत्महत्या पे कुछ नहीं बोलते हैं, फिर आप अचानक से किसान बीमा लेकर आते हैं, फिर आप एक किसान के बेटे को सेडिशन लॉ के तहत बुक करके जेल में डाल देते हैं, तो ये सवाल अपने आप बाहर चला जाता है. आप देश के जवानों को किसान के बेटे के साथ भिड़ाना चाहते हैं, तो ये सवाल अपने आप बाहर चला जाता है, जहाँ वो किसान खड़ा होकर के कहता है कि मेरा बेटा जो JNU में पढ़ रहा है वो भी मेरा ही बेटा है, और मेरा बेटा जो सीमा पे मर रहा है वो भी मेरा ही बेटा है. और यह जो फॉल्स बाइनरी बना रहे हैं कुछ लोग अपने पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में, उसके खिलाफ न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के लोग एकजुट हो जाते हैं और स्टैंड विद JNU के साथ सपोर्ट जो आया है वो सिर्फ JNU से नहीं, JNU के बाहर से भी आया. आप ASF में हैं और कम्युनिस्ट भी है. आप कल का स्पीच में बताया था रेड प्लेट एंड ब्लू प्लेट.
You are an Ambedkarite also, right? What is your philosophy and how did you evolve yourself? See, this is not very complex. Sometimes we make it complex. See, जो सारे लोग एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हैं, चाहे उनका रंग कोई भी हो, लाल हो, हरा हो या नीला हो, लेकिन वो सोसाइटी से एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनको एक बात समझना होगा कि जब एक्सप्लॉयटेटर यूनाइट हो सकते हैं, जब ऑपरेसर यूनाइट हो सकते हैं, तो ऑपरेस्ड क्यों नहीं यूनाइट होंगे। और ये जो एक यहाँ भी एक फॉल्स बाइनरी है, एक फॉल्स आइडियोलॉजिकल बाइनरी। जब हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट हैं, वहीं हम अपने विकास को रोक देते हैं। हम कम्युनिस्ट होने की प्रक्रिया में हैं। वी आर इन द प्रोसेस टू बी एन कम्युनिस्ट। तो उस दौरान आपको सिर्फ मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, आपको अंबेडकर की भी ज़रूरत है। आपको सिर्फ कन्हैया की ज़रूरत नहीं है, आपको रोहित वेमुला की भी ज़रूरत है। और किसके खिलाफ ज़रूरत है? जो लोग सत्ता का इस्तेमाल कर, स्टेट टूल्स का इस्तेमाल करके, जो ऑपरेस्ड लोग हैं उनको डिवाइड करके, उनको लड़ा करके उनके ऊपर शासन कर रहे हैं। ये यूनिटी होना एक नेचुरल ट्रूथ है सोसाइटी का, एंड ये होकर ही रहेगा। अगर उसको हम प्लान तरीके से कर पाएँ, इस बात को अगर हम समझ पाएँ, तो समस्या थोड़ी कम हो जाएगी, समस्या का बढ़ना थोड़ा रुक जाएगा और समाधान हमको जल्दी मिल जाएगा, सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। रोहित वेमुला का इशू थोड़ा बड़ा इशू था, दलित का इशू था, दलित स्टूडेंट का इशू था। आपका इशू ओवरशैडो किया है रोहित वेमुला का इशू से? मैं कह रहा हूँ कि एक एप्रीहेंशन था हमारे मन में। जब भी कोई एक मूवमेंट शुरू होता था, उसके पैरेलली जब दूसरा मूवमेंट शुरू होता था, तो हमें लगता था कि ये एक जो है ओवरशैडो करेगा। लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट इस सरकार के आने के बाद जो हुए हैं, और ये मूवमेंट कोई प्लान्ड मूवमेंट नहीं है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। ड्यू टू द रेग्रेसिव प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यू टू द एंटी पीपल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, उसके चलते जो एक कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, ये देश में छोटी छोटी नदियों की तरह है, जो आपस में जुड़ती जा रही है। एक बड़ी नदी बन रही है, और फिर बड़ी नदी जो है एक समंदर में जाकर के मिल रहा है। इट इज़ हैपनिंग लाइक दैट। तो ये ओवरशैडो नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे के साथ मिल करके उसकी ताकत को बढ़ा रहा है। सी, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ JNUSU and I am talking about the FTII. So the movement of FTII is still alive with the stand JNU. You are getting my point. So it is not overshadowing to each other. It is helping to each other. आगे क्या प्लान है? आगे क्या करा? आगे हमारा कोई प्लान नहीं है। आगे तो यह सरकार कुछ कर देगी। आए दिन कुछ कुछ करते रहती है। पहले फेलोशिप बंद कर दिया तो ऑक्यूपाई UGC चलाया, फिर जो है साथी रोहित को हत्या किया, उसको आत्महत्या करने पे विवश किया, तो जस्टिस फॉर रोहित वेमुला चल रहा है। अभी JNU को बदनाम करने का कोशिश किया, स्टैंड ऑफ JNU चला रहे हैं। कल को फिर कोई कारखाना बेच दे, कल को फिर कोई किसान और मजदूर के खिलाफ कोई एंटी पीपल पॉलिसी ले आए, यह मूवमेंट बड़ा होता चला जाएगा। और ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको एक विस्तार देने की ज़रूरत है, उनको एक वाइडर पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है, ताकि इस देश को एक ट्रू सेंस में जो हमारा प्रियम्बल है, जो कहता है, उसको हम लोग वास्तविकता में उतार पाएँ, ज़मीन पे ला पाएँ। सीताराम येचूरी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट जा रहा है, अभी JNU में भी आया है, और आपको भी उधर जाना होगा, उसके पास जाना होगा, और राजनीति में जाना होगा, कैंपेन में जाना होगा। फर्स्ट स्टेज में चुनाव आ रहा है, आप ज़रूर जाएंगे? देखिए, चुनाव आएगा, जाएंगे, ये तो बाद की बात है, लेकिन जो हुआ है उसके बारे में आप जो कह रहे हैं, तो मैं बस आपको एक फ़र्क करके देखने की बात कहूँगा कि आंदोलन में लोगों को एक साथ आना एक बात है। ज़रूरी नहीं है कि चुनाव में भी लोग एक साथ आएँ, लेकिन आंदोलन में अगर लोग एक साथ आ रहे हैं, दिस इज़ गुड। अगर आंदोलन के लिहाज से चुनाव में केरला जाना पड़ा, तो लेट्स सी, आई हैवंट डिसाइडेड इफ दिस चांस विल कम एंड आई। Have you been to Kerala? Know something about Kerala? I know
Obviously, Kerala is the heartland of the left movement in this country, so I know so many things. My friend Mohsin, Aparajita, they all are Bibin, they all are from Kerala. So They are very good, organized, disciplined AISF cadre. So I know so much things of Kerala. There was a very great leader, Comrade Chandrappan, and he was leader of All India Student Federation. So there are lots of story I have. you will be happy to go to Kerala and campaign for left democracy. If I get the chance, I will get the direction from my organization, All India Student Federation, and from my student council. Then of course it will be very happiest moment for me. What is your ultimate aim, Kanhaiya? नरेंद्र मोदी का 2 साल हो गया है, 3 साल आगे है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा गोल यही है कि जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं वो बातें समाज में दिखनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर क्रेडेंशियल, इक्वलिटी, सोशलिज्म, ये समाज में दिखना चाहिए, ये सचमुच होना चाहिए। सिस्टम को उस लेवल तक बेहतर बनाना, यही मेरा गोल है। ये समाज के लिए ये सोशल इंजीनियरिंग का स्लोगन्स, ये तो हम सुना है पहले इंदिरा गांधी से और अभी नरेंद्र मोदी से भी, ये सब राजनीति में है। और आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने सुना है उसके बाद आपने देखा है, अभी आप सुन रहे हैं तो फिर आप उसको भी देखेंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए एवं ह्यूम के द्वारा बनाया गया था और जो देश की आज़ादी के लिए गांधी के नेतृत्व में लड़ रही थी, फिर जिस कांग्रेस को नेहरू जी ने चलाया, फिर जिस कांग्रेस को इंदिरा गांधी और राजीव ने चलाया, और जो कांग्रेस अभी सोनिया गांधी और राहुल चला रहे हैं, उसमें एक क्वालिटेटिव फ़र्क है। जो कम्युनिस्ट पार्टी को पीसी जोशी ने शुरू किया और जिस कम्युनिस्ट पार्टी को अभी सुधाकर रेड्डी चला रहे हैं, जिस कम्युनिस्ट पार्टी को गोपालन और बीटीआर ने शुरू किया उसको अभी सीताराम येचुरी चला रहे हैं, उसमें क्वालिटेटिव फ़र्क है। हमेशा राजनीति में एक क्वालिटेटिव चेंज होते रहता है, क्वांटिटेटिव चेंज के साथ साथ ये क्वालिटेटिव चेंज आते रहता है। मुझे लगता है कि आज इस देश की राजनीति जहाँ खड़ा है वहाँ एक लाइन खींच रही है समाज के अंदर। वो लाइन है रेग्रेसिव वर्सेस प्रोग्रेसिव, एंड इट इज़ वेरी होपफुल सिचुएशन फॉर मी and the youth students like me. For them this is very good time, this is high time to speak against the regressive thing and for the betterment of the society to endorse our constitution. Actually, there is a doctored video and a media trial. Do you think the entire episode belongs to media trial? And you are a victim of a media trial? See, all media houses are not bad. There are some media houses, they have clear-cut political relation with RSS and BJP, and their owners are trying to go inside the parliament from the BJP, and they have did. So, of course, this is a kind of media trial, but not by the all media houses. And I am not the victim of media trial. I am the victim of most rigorous politics of RSS, BJP, and they have tried to silence me, but I am again being very much rebellion against them, against their ideology. Some of the channels have shown the video. How do you see that media has become a part of a political conspiracy? See, I have already said you that this whole matter is sub judice. So again, video is doctored or not doctored, the court will decide. I will not comment on that. Okay, Kanhaiya, thank you very much for being with me. Thank you.